Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and continuing your studies. In last video, I have discussed about the cytoskeletal structures present in the cell. Now in this video, I will discuss about the structure and function of cilia and flagella. So students, today I am going to discuss about another structure present in the cell, that is flagella and cilia. These flagella and cilia are fine hair-like movable outgrowth of the cell, which helps in locomotion and passage of substances. Means cilia या flagella जो है, they are the outgrowth of cell. Cell के ही outgrowth है, which can move and they look like hairs. फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड सिंस दे कैन मूव दे हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और दे कैन हेल्प इन द लोकोमोशन और पासेज ऑफ सम सब्सटेंसेस. नाउ दिस फ्लैजेला आर लॉन्गर इन साइज, मीन्स their length is more in comparison to cilia. Means flagella are longer than cilia, but these flagella are fewer in number than cilia. Means flagella जो है they are longer and fewer in number, but cilia are smaller than flagella but they are present in large number. Okay, these flagella are present in many protists like euglena, or they are present in sperm of animals or bryophytes, etc. The cilia are generally present in groups, and cilia, if we will talk about lower animals, then the cilia is present on the whole surface of the paramecium. And if we will see where cilia is present in eukaryotic animals, then cilia in eukaryotic animals are present on the tracheal and bronchial inner walls. Means हमारी जो windpipe है, trachea और जो bronchi है, उसके inner walls पे cilia present होते हैं. Now the structure of cilia and flagella. Both cilia and flagella are exactly similar in structure. Basic structure देखें तो they are similar. To study the structure of cilia and flagella, we have to cut the two sections of cilia and flagella. Suppose किसी organism में flagella है, अगर हमें उसकी basic internal structure पढ़नी है तो we have to cut sections. First is the transverse section and second is the longitudinal section. तो जब transverse section cut करेंगे तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखेगा, और जब हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे, मीन्स ऊपर से नीचे वर्टिकली, तब उसका जो सेक्शन है उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ cilia and flagella is basal body. This basal body occurs in outer part of the cytoplasm just below the plasma membrane. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होते हैं, वी कैन से दैट साइटोप्लाज्म इज द आउटर पार्ट. ओके, आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. सो बेसल बॉडी इज प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और बेसल बॉडी में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? इट कंटेन्स हब इन द सेंटर एंड सब माइक्रोफाइब्रिल्स. दोनों साइड्स पे कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे. माइक्रोफाइब्रिल्स ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं सेल के. As I have discussed in the last video about the cytoskeletal structures, in that I have also discussed that cytoskeletal structures are also present in the basal body of cilia and flagella. So basal body occurs in outer part of cytoplasm just below the plasma membrane, and it contains hub and submicrofibrils. Now the second part of the cilia and flagella is rootlets. You can see in the diagram that these rootlets are developed from the lower part of the basal body. जो basal body है उसके lower part से develop हो रहे हैं, and they mainly provide support to basal body. Basal bodies को support करने के लिए होते हैं. Now the third part of the structure of cilia and flagella is basal plate. This basal plate lies just above the basal body. Basal body के just ऊपर present होता है at the level of plasma membrane. just plasma membrane के बराबरी, उसके level में ही. Okay. Now the fourth part of the structure of cilia and flagella is shaft. In this shaft we will study about the transverse section and longitudinal section both. Exactly what is this shaft?
दिस शाफ्ट इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो जो सेल की बाहर जो आउटग्रोथ है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला या सीलिया का, उसे हम कहते हैं शाफ्ट। शाफ्ट जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ शीथ, दोनों ही डायग्राम में आप देख सकते हैं, इट इज़ कवर्ड बाय अ शीथ, आउटर लेयर होता है इसके अंदर, और इंटरनली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है शाफ्ट में वो कहलाता है एक्सोनीम। एंड दिस एक्सोनीम contains 9 peripheral doublet fibrils and 2 central singlet fibrils। मीन्स fibrils होते हैं, और ये जो fibrils है वो पेरीफेरी पे भी होते हैं और सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। जो पेरीफेरी पर हैं वहाँ पर हम कह रहे हैं what we have called 9 peripheral doublet fibrils। डबलेट इसलिए क्योंकि ये जो दो पेरीफेरल जो दो फाइब्रिल्स है दे आर प्रेजेंट इन अटैचमेंट, एक साथ अटैच्ड है, ओके, इसी वजह से हम इसे डबलेट करें, दो एक साथ प्रेजेंट है। और ये दो स्ट्रक्चर फाइब्रिल्स के ये कितने हैं पेरीफेरी पे? पूरे 9। सो एक्सोनिम कंटेन्स 9 पेरीफेरल डबलेट फाइब्रिल्स। इसके अलावा जब हम सेंटर में देखते हैं देन वी कैन सी दैट इन द सेंटर देयर आर 2 फाइब्रिल्स बट दे आर सिंगलेट। यहाँ पर क्या है? फाइब्रिल्स सिंगलेट है, एंड क्योंकि वो दो प्रेजेंट है तो हम कह रहे हैं 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल्स इन द शाफ्ट ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया, या फिर कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द अरेंजमेंट इन ऑफ एक्सोनीम इन सीलिया एंड फ्लैजेला, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है। What is this 9+2 arrangement? क्यों 9+2 arrangement कह रहे हैं? Simply this 9 represents the 9 peripheral doublet fibrils and 2 represents the 2 central singlet fibrils. Okay? अब ये जो central tubules और fibrils हैं exactly ये arise कहाँ से होते हैं? They used to arise from the basal plate and these central tubules and fibrils are connected with each other. यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो दोनों सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स हैं इनके बीच में एक कनेक्शन है, एक ब्रिज लाइक कनेक्शन है, ओके तो एक ब्रिज जैसा कनेक्शन प्रेजेंट होता है दोनों फाइब्रिल्स जो सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स हैं उनके बीच में। एंड दिस सेंट्रल ट्रिब्यूल्स और फाइब्रिल्स, दिस 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स आर कवर्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। मीन्स बाहर तो शाफ्ट के बाहर तो आउटर शीथ होता ही होता है, साथ ही साथ इंटरनली जो ये सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स हैं दो, उनके चारों तरफ भी सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होता है। एंड दिस सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल डबलेट्स। कैसे कनेक्टेड है पेरिफेरल डबलेट्स से? दे आर कनेक्टेड टू द पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। दीज आर द रेडियल स्पोक्स। इस रेडियल स्पोक्स के हेल्प से जो सेंट्रल शीथ है वो पेरीफेरल डबलेट से कनेक्टेड रहता है। एंड दीज पेरीफेरल डबलेट्स, ये जो पेरीफेरल डबलेट्स है 9, यू कैन सी इन द डायग्राम दैट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ सम स्ट्रक्चर एंड दिस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिंकर्स। मीन्स पेरीफेरल डबलेट्स जो हैं ये 9 पेरीफेरल डबलेट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, दे remains interconnected by the help of linkers. That was the transverse section of shaft. Now we will see the longitudinal section of the shaft. अब जब हम longitudinal section देखते हैं तो we can see that वो जो structure हमने transverse section में पढ़ा वैसा ही structure पूरे के पूरे shaft में present है line से। ओके सबसे पहले देखें तो सेंटर में प्रेजेंट है सेंट्रल फाइबर्स, ये सेंट्रल फाइबर प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और उससे कवर करते हुए ये प्रेजेंट है सेंट्रल शीथ। अब क्योंकि वो जो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने पढ़ा स्टडी किया, हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में पढ़ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हमने उसमें देखी, बट वो स्ट्रक्चर पूरे के पूरे शाफ्ट में ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे आप सेंट्रल शीथ इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट था पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है तो आप इसमें 9 पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं देख सकते, बस 2 ही
पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स देख सकते हैं, तो ये जो है A+B, आप उस पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को A और B नाम दे सकते हैं। तो जो पेरिफेरल डबलेट है, एक इस साइड आप देख रहे हो और दूसरी साइड, मीन्स दो पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल शीथ इस पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल्स से कैसे अटैच था? इट वॉज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोक्स। बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये सारे सेंट्रल शीथ जो है वो कैसे अटैच्ड है पेरिफेरल डबलेट से? विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियल स्पोक्स। दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे ये रेडियल स्पोक्स, ओके। एंड लास्टली दिस इज द tip of the shaft. So students, this was the whole structure of the cilia and flagella. Now the movement of cilia and flagella. अभी आपने देखा कि क्या स्ट्रक्चर था cilia और flagella का. Now we will see how the cilia and flagella used to move. The cilia and flagella movement mainly depends upon the sliding of doublet fibrils against one another. जो पेरीफेरी में डबलेट 9 डबलेट फाइब्रिल्स प्रेजेंट थे, उनकी एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग के वजह से सीलिया और फ्लेजला जो है वो मूव कर पाते हैं। नाउ दिस फ्लेजला शो वेवी मूवमेंट, जिसे हम अनड्यूलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। सो फ्लेजला शो वेवी मूवमेंट एंड सीलिया शो रोइंग और स्वीपिंग मोशन। स्वीपिंग का मतलब क्या? झाड़ू लगाना। मीन्स सीलिया जो है वो स्वीपिंग मोशन दिखाते हैं। अब ये स्वीपिंग मोशन जो सीलिया में है, इट कैन आइदर ऑकर साइमल्टेनियसली और वन बाय वन। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे जो सीलिया है वो एक साथ मूव करें या फिर एक करके, ओके। तो ये जो मूवमेंट है फ्लेजला में, उसकी वेवी मूवमेंट की वजह से, उसकी वेवी मूवमेंट की हेल्प से जिस भी ऑर्गेनिज्म में फ्लेजला है, दैट ऑर्गेनिज्म यूज टू मूव फॉरवर्ड। और सीलियरी मूवमेंट की बात करें, सिंस वी नो दैट इट मूव्स और इट शो रोइंग और स्वीपिंग मोशन एंड इट मे ऑकर साइमल्टेनियसली और इट मे मूव वन बाय वन। नाउ दिस सीलियरी मूवमेंट शो 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज पावर स्ट्रोक एंड द सेकेंड फेज इज रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या है? इन पावर स्ट्रोक वाटर इज पुश्ड बैकवर्ड, मीन्स जो वाटर है वो पीछे की तरफ मूव करते हैं। और इस बैकवर्ड मूवमेंट जो है वाटर का, इस बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से दैट ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सीलिया यूज टू मूव फॉरवर्ड। मीन्स पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा है? इन पावर स्ट्रोक वाटर इज पुश्ड बैकवर्ड एंड द ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड। एंड ड्यूरिंग रिवर्स स्ट्रोक, जो रिवर्स स्ट्रोक है दूसरा, जो कि पावर स्ट्रोक के बाद का फेज है, तो रिवर्स स्ट्रोक में वो सीलिया जो है पीछे की तरफ आए थे, वो अब अपने पोजीशन पे वापस पहुंचते हैं। मीन्स इन रिवर्स स्ट्रोक सीलिया कम्स बैक टू इट्स पोजीशन। The functions of cilia and flagella. The first function of cilia and flagella is that it helps in locomotion of some algae and protist. Means in some algae and protist, these flagella and cilia helps in the movement. Okay. Now the second function of cilia and flagella is respiration in aquatic organisms. In some aquatic organisms, cilia helps in obtaining oxygen and quick elimination of carbon dioxide. Third function is in terrestrial animals. In terrestrial animals, cilia is present in the respiratory tract, and this cilia, which is present in the inner wall of respiratory tract, it helps in the elimination of any sort of dust particles or microorganisms which is coming from air. Fourth function is that the cilia and flagella acts as sensory organs in some organisms. And the last function of cilia and flagella is that in some organisms, the ciliary tips, जो cilia के tips होते हैं, they used to secrete some sticky substances. And this sticky substance helps in the conjugation and also fusion of gametes. That's all for this video. In next video, I will discuss about some more structures present in the cell, that is centrosome and centrioles, and also about microbodies. Till then,
Stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.